Okay, so now let us start with the 40 number question in urology. 40 number question urology में क्या बोल रहे हैं ये? In 40 number question they are telling gold standard investigation for fistula in ano. Okay, let me make it a little bit small, है ना? I'll make it 0.5. So gold standard investigation for fistula in ano. Fistula in ano के लिए gold standard investigation क्या है? यहाँ देखो ऑप्शन में CT scan, X-ray, USG and MRI. Four options are given: CT scan, X-ray, USG and MRI. So in this, the best for general the gold standard investigation for fistula in ano will be generally MRI. But यहाँ पे देखो CT scan किसी चीज़ के लिए generally investigation of choice है. CT scan is investigation of choice for seeing calcifications, fractures, except the stress fracture. You must stress on this point that every fracture can be located on the CT scan, and CT scan is the generally gold standard investigation of choice for generally any fractures except stress fracture. Again, I will be discussing this point in the orthopedic second. In case of foreign body and in case of acute hemorrhage, you can do generally CT scan. If I talk about the X-ray, X-ray is investigation of choice for knowing positions of generally medial devices like NG tube, pacemaker. It is generally pleural effusion वगैरह देखने के लिए हम फर्स्ट लाइन में इसको यूज करते हैं जनरली. दिस इज यूज्ड फॉर फर्स्ट लाइन बट इट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट डायग्नोसिस. फॉर दैट वी हैव टू यूज CT स्कैन एंड ऑल अदर इमेजिंग मॉडलिटीज. बट जनरली चेस्ट एक्सरे वगैरह हम जनरली निमोनिया वगैरह के केस में फर्स्ट में चेस्ट एक्सरे ही जनरली क्या कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं. बट उसके लिए भी बेस्ट क्या है, CT स्कैन है. USG के लिए देखना है तो USG जनरली इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गॉल ब्लैडर पैथोलॉजीज, फ्लूइड एंड सिस्ट्स एंड फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी. दिस आर द three things in which USG is mostly used. Now let's see. A patient with chronic knee pain is presented to your OPD and X-ray was performed which is shown here. Identify the disease. क्रोनिक नी पेन है पेशेंट को एंड जनरली ही इज प्रेजेंटिंग टू योर ओपीडी. यू ऑर्डर्ड एक्सरे. अब जनरली क्रोनिक नी पेन लेके आता है तो जनरली हम यूरिक एसिड वगैरह सब चेक करवाते हैं ना जनरली. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट इन द बायोकेमिस्ट्री, है ना. विल डू दैट. मेडिसिन में अगेन विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स बट जनरल डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए. बट जनरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक्सरे दे दिया हुआ है. सो इफ एक्सरे इज गिवन देन विल डायरेक्टली सी द एक्सरे एंड गो टू द जनरली डायग्नोसिस. यहाँ पे देखो एक्सरे में एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पर्ट यहाँ पे दिख रहा है, एक बोनी आउटग्रोथ दिख रहा है. सो this bony outgrowth is nothing but this bony outgrowth which is continuous with cortex. It is generally continuous with the cortex. It is generally continuous with the cortex. That is called as ixostosis or osteochondroma. Ixostosis and osteochondroma. Again in orthopedics this will be done in a very brief manner, है ना. So ixostosis and osteochondroma, that is investigation of choice for this type of pathology is nothing but MRI. और कॉन्ड्रोसार्कोमा और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में क्या फर्क है? कॉन्ड्रोसार्कोमा इज जनरली कार्टिलेज कैप थिकनेस जो होता है जनरली दैट विल बी ग्रेटर देन 1.5 to 2 सेंटीमीटर. ठीक है, दैट विल बी कॉन्ड्रोसार्कोमा. सो यहाँ पे देखो दिस इज ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा और जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सोस्टोसिस. एक्सोस्टोसिस. जाइंट सेल ट्यूमर में जनरली क्या होता है? सोप बबल अपीयरेंस इन डिस्टल पार्ट ऑफ द रेडियस. यू मस्ट रिमेंबर दिस. जाइंट सेल ट्यूमर. जाइंट सेल ट्यूमर में जनरली देयर विल बी सोप बबल अपीयरेंस इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द रेडियस. इन ऑस्टियोसार्कोमा देयर विल बी सनबर्स्ट अपीयरेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वन लाइनर्स. दीज आर वन लाइनर्स, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. जस्ट रिमेंबर दिस. यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना. सो जनरली ऑस्टियोसार्कोमा में देयर विल बी सनबर्स्ट अपीयरेंस एंड Ewing sarcoma, very important again. Ewing sarcoma में there will be onion peel appearance. Onion peel appearance. This has been asked so many times in Ewing sarcoma. Next, let's move to the other question, that is a 50-year-old patient presented to your OPD with severe pain in flanks radiating to umbilicus and penis. He says he urinates more than often than usual and has burning sensation during urination. Burning sensation during urination and passes a small amount of urine which is red in color, means hematuria. Hematuria is also there and the urine is foul smelling also. An abdominal X-ray was performed which is the best management for this case. So यहाँ पे सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट के लिए देखो जनरली ये क्या चीज़ हो कैसे देखो OPD with severe pain in flanks radiating to umbilicus and penis. So this is generally umbilicus और penis पे radiate कर रहा है. In surgery you have already read this. So this is generally renal stone. ठीक है, renal stone है ये. और जनरली इसके लिए हम क्या करेंगे, renal stone है तो we'll go for ureteroscopy. Management of this case में यहाँ पे ureteroscopy, shockwave lithotripsy, cystolithoplexy and पाइलोलिथोटोमी. सो दिस विल जनरली बी गोइंग टुवर्ड्स द यूरेट्रोस्कोपी. पहले करके हम देखेंगे व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर दिस केस. यहाँ पे देखो यूरेट्रोस्कोपी करेंगे और वहाँ पे देखो
स्टोन के लिए जनरली यूरेट्रिक स्टोन और रीनल स्टोन कहाँ पे आके अटका हुआ है उस हिसाब से जनरली यूरेटर में अगर प्रॉक्सिमल और डिस्टल पे है तो क्या करना है, और नॉन लोअर पोल और लोअर पोल पे है तो जनरली क्या करना है, एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अगेन। यहाँ पे देखो 34-year-old मेल कंप्लेंट्स ऑफ लोअर बैक पेन फॉर 6 months। 34-year-old मेल कंप्लेंट्स ऑफ लोअर बैक पेन फॉर 6 months। ही इज प्रीवियसली डायग्नोज्ड एज ए केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, मीन्स एसोसिएशन दिया हुआ है अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक्सरे पिक्चर ऑफ lumbar spine given below, what is the likely diagnosis? This question has been just asked in 2022, just 2 or 3 years back they have asked this question। यहाँ पे देखो ये पूरे का पूरा जो स्पाइन है ये फ्यूज हो गया है, ऑल दीज स्पाइंस हैव बीन फ्यूज टुगेदर। सो दिस इज जनरली लिगामेंट कैल्सिफिकेशन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, डैगर साइन। दिस इज द डैगर साइन दैट वी जनरली सी, द स्पाइंस आर जनरली फ्यूज। सो दिस इज डैगर साइन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज जनरली गोइंग टुवर्ड्स एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। दिस इज डैगर साइन जब भी दिमाग में आया, सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यू मस्ट रिमेंबर दिस बजवर्ड दैट इज डैगर साइन। क्लिनिकल फीचर अगर मैं देखूँ तो यंग मेल विथ इन्फ्लामेटरी लो बैक एच एंड बायलेटरल हील पेन। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है इन्फ्लामेटरी लो बैक पेन दिया हुआ है, एंड एसोसिएटेड विथ HLA-B27, और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी दिया हुआ है। फर्स्ट ज्वाइंट अफेक्टेड इज सैक्रोइलियक ज्वाइंट, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन दिस केस विल बी MRI। यू मस्ट रिमेंबर a little bit about this ankylosing spondylitis. So our answer here will be ankylosing spondylitis. Identify the bone marked in the X-ray of the foot. In this X-ray of the foot, the bone, what bone is marked? Generally, this type of questions are being now asked in anatomy also. और anatomy में भी मैंने आपको जनरली ये सारी चीज़ें बताई थी, वहाँ पे एक्सरे रख के भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। देखो ये ऐसे करके ये पिक्चर देखो और ये पिक्चर देखो, बस जनरली लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो गया। सो जनरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, ये सामने वाला बोन पूछ रहा है ना, दिस सामने वाला बोन। सो यहाँ पे देखो दिस बोन इज नथिंग बट कैल्केनियस, ठीक है, पीछे वाला बोन इज कैल्केनियस। ये वाला बोन जो है दैट इज टैलस, और ये जो है क्यूबोइड है, दिस इज नेविक्यूलर। ये यहाँ पे मेडियल क्यूनिफॉर्म है, ये लैटरल क्यूनिफॉर्म है, और ये जनरली इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म यहाँ पे आके है, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। यही चीज़ को अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऊपर वाला जो है दिस इज टैलस है ना, और ये यहाँ पे जो आता है दैट इज नथिंग बट नेविक्यूलर, और दिस वन इज नथिंग बट इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म है ना, एंड दिस वन इज नथिंग बट लेटरल क्यूनिफॉर्म। देखो लेटरल साइड में छोटे उंगली की तरफ लेटरल क्यूनिफॉर्म है ना, लेटरल क्यूनिफॉर्म, एंड मीडियल क्यूनिफॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, दिस नेविकुलर, और दिस इज जनरली द क्यूबोइड, एंड ये क्या है हमारा सबसे बड़ा वाला दैट इज कैल्केनियस। सो दिस यू मस्ट रिमेंबर। और यहाँ पे ये जो अब सामने वाला जो बोन ऊपर पूछा गया है वो आप इजीली कर लोगे, दैट इज नथिंग बट ये देखो यही वाला बोन में पूछा गया है यहाँ पे। सो दिस इज नथिंग बट नेविक्यूलर, दिस इज नेविक्यूलर बोन, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलो। A 35-year-old male presented with pain and swelling around the wrist joint. Around the wrist joint, there is no history of injury. Comment based on the X-ray shown below. कोई हिस्ट्री नहीं है इंजरी की, कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, बट जनरली यहाँ पे देखो ये रिस्ट में जनरली स्वेलिंग, और ये जब एक्सरे किया तो यहाँ पे देखो ये बबल के जैसा दिख रहा है, ये बबल जैसा दिख रहा है, और ये थोड़ा बड़ा भी हो गया और बबल जैसा दिख रहा है। सो दिस इज जनरली डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस है ना, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस। और आना तो आपको आता है जनरली, ये देखो ये लिटिल फिंगर की तरफ अल्ना, और इस साइड क्या हो जाता है जनरली रेडियस हो जाता है। सो ये यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखो आप, ये क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट रेडियस, एंड दिस इज जनरली अल्ना है ये, है ना, रेडियस और अल्ना। डिस्टल इंड मतलब दूर वाला इंड, और प्रॉक्सिमल इंड मतलब पास वाला इंड, सो दूर वाला। अब यहाँ से शुरू होता है, अगर यहाँ से शुरू होता है तो जनरली ये वाला इंड क्या हो जाएगा, डिस्टल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल हो जाएगा। सो डिस्टल इंड ऑफ जनरली रेडियस, डिस्टल इंड ऑफ रेडियस। यहाँ पे क्या है, मल्टी लॉक्यूलेटेड लीजन्स आर सीन, मल्टी लॉक्यूलेटेड गोल ऐसा लीजन्स दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सोप बबल अपीयरेंस, सोप के बबल जैसा दिख रहा है। Diagnosis will be giant cell tumor or osteoclastoma. History of 30 to 50 years person with no injury, और क्वेश्चन में नो इंजरी मेंशन किया गया। सो रिमेंबर दिस बज़वर्ड्स है ना, सोप बबल अपीयरेंस है, एंड डिस्टल एंड ऑफ रेडियस पे है। सो दिस इज जनरली मल्टीलोक्यूलेटेड लीजन्स लुकिंग लाइक सोप बबल लीजन। सो दिस इज जाइंट सेल ट्यूमर और ऑस्टियोक्लास्टोमा। यहाँ पे देखो ऑप्शन में जाइंट सेल ट्यूमर और ऑस्टियोक्लास्टोमा। यहाँ पे देखो ऑस्टोसार्कोमा मैंने पहले भी आपको बताया था। ऑस्टियोसार्कोमा देयर विल बी जनरली सनबर्स्ट अपीयरेंस इन द लोअर एक्सट्रीमिटी बोन, नॉट इन द अपर एक्सट्रीमिटी। नेक्स्ट देखो कोल्स फ्रैक्चर में देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ कोर्स देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ सम ट्रॉमा इफ देयर इज सम फ्रैक्चर। रिकेट्स में जनरली देयर विल बी कपिंग, स्प्लेइंग एंड फ्रेइंग ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस में कपिंग हो जाएगा या फिर स्प्लेइंग हो जाएगा एंड फ्रेइंग हो जाएगा। सो दिस इज जनरली कप जैसा ऐसा अपीयर होने लगेगा, है ना। बट
जनरली वहाँ पे क्या नहीं होगा, कप बनाते हैं हम ऐसा ऐसा कपिंग स्प्लेइंग हो जाएगा. सो जनरली नॉट दिस सोप बबल अपीयरेंस. सो दिस इज जनरली रिकेट्स एंड जायंट सेल ट्यूमर. सो जायंट सेल ट्यूमर विल बी आवर आंसर here. A 70-year-old male presented with multiple areas of the bone pain, anemia, renal failure, proteinuria, and hypercalcemia. Remember, hypercalcemia, proteinuria, renal failure. X-ray skull is shown in the image. What is the most likely diagnosis? 70-year-old male है, देखो एल्डरली पर्सन है, विथ मल्टीपल एरियाज ऑफ बोन पेन, एनीमिया भी है, रीनल फेलियर भी है, प्रोटीन यूरिया भी है और हाइपर कैल्सीमिया भी है. नाउ हेमेटोलॉजी अगर आपने पढ़ा तो आपने डायग्नोसिस बना लिया होगा. सो दिस इज नथिंग बट ट्रायड ऑफ मल्टीपल माइलोमा जो हमको क्वेश्चन में दिया गया. क्या क्या देखो, बोन मैरो पिक्चर सोज ग्रेटर देन 10% माइलोमा सेल, खैर यहाँ पे नहीं दिया हुआ. इलेक्ट्रोफोरेसिस में यम स्पाइक दैट इज ग्रेटर देन 30 ग्राम पर डेसीलीटर, और माइलोमा डिफाइनिंग इवेंट्स जो कि हमको यहाँ पे दिया गया दैट इज नथिंग बट CRAB क्रैब से याद करते हैं हम, दैट इज हाइपरकैल्सीमिया दिया हुआ है, रीनल फेलियर भी दिया हुआ है, एनीमिया एंड जनरली बोनीलाइटिक लीजन्स. और यहाँ पे देखो बोनीलाइटिक लीजन्स, ये lytic punched out lesions are present in the skull. So this is going towards multiple myeloma. कार्सिनोमा प्रोस्टेट का क्यों नहीं हो सकता है? देखो, एक तो ऊपर दे रखा है, स्कल का दे रखा है. कार्सिनोमा प्रोस्टेट में जनरली क्या होगा, ऑस्टियोस्क्लेरोटिक लीजन्स इन द लंबोसैक्रल स्पाइन विल बी सीन. ठीक है, वहीं पे अगर मैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की बात करूं तो देयर विल बी नो एनीमिया एंड द हिस्ट्री ऑफ रीनल फेलियर. गेन वहाँ पे ये पंच्ड आउट लीजन्स दिख सकते हैं, बट जनरली क्या नहीं हो सकता है, एनीमिया एंड रीनल फेलियर विल नॉट बी देयर. Anemia and renal failure plus punched out bonylytic lesions 100% multiple myeloma. Secondary hyperparathyroidism भी नहीं हो सकता क्योंकि it is due to chronic renal insufficiency. ठीक है, due to chronic renal insufficiency. What is the likely diagnosis here? यहाँ पे देखो, ये क्या है, किडनी दिखा रहा है ना, ये किडनी दिखा रहा है हमको यहाँ पे, है ना, ये किडनी दिखा रहा है. बट जनरल देखो किडनी का पूरा शेप डिस्टॉर्टेड हो गया है, किडनी का पूरा शेप डिस्टॉर्टेड हो गया है. सो दैट इज गिविंग अस लार्ज कॉर्टिकल प्लस मेड्यूलरी सिस्ट्स आर सीन. देखो कॉर्टेक्स में भी मेड्यूला में भी पूरा का पूरा सिस्ट्स दिख रहा है ना, सिस्ट्स दिख रहा है. सो दिस इज जनरली, और यहाँ पे क्या कॉर्टेक्स कौन सा है और मेड्यूला कौन सा है, आउटर और इनर पोर्सन, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट. सो हियर इज द लॉस ऑफ कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शंस, कंप्लीट डिस्टॉर्टेड किडनी इज सीन. सो दिस इज डायग्नोसिस ऑफ ADPKCD, दैट इज एडल्ट बोल रहा हूँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज. और AD यानी कि एडल्ट, यानी कि AD ऑटोसोमल डोमिनेंट किस में होता है, एडल्ट में प्रेजेंट करेगा, है ना. एंड ये पैथोलॉजी याद करना हमको, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स फ्रॉम द पैथोलॉजी हियर. एंड ऑटोसोमल रिसेसिव है तो दैट विल बी सीन इन द चाइल्ड. AD फॉर एडल्ट करके याद रखना है. ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एंड ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, दो थिंग्स हैं वहाँ पे, वो हमको याद कर लेना है. चलो, सो दिस इज जनरली CT ADPCKD, CT ARPCKD. सबसे पहले तो ये CT है कि MRI है, वो आप सबसे पहले क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो. सो दिस इज नॉट CT, दिस इज जनरली MR, दैट इज MRI, है ना. और दिस इज MRI ऑफ ADPCKD. ARPCKD में जनरली क्या होगा, AR यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में यू विल सी बायलैटरल नेफ्रोमेगाली, देयर विल बी इनलार्जमेंट ऑफ द किडनीज, रेनिफॉर्म शेप्ड किडनी विल बी सीन एंड होमोजेनस पैरेन्काइमल सिग्नल पैटर्न विल बी सीन ऑन द MRI. नेक्स्ट, मूव अहेड. आइडेंटिफाई द एक्सरे व्यू सोन. ये यहाँ पे जो एक्सरे व्यू यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको जनरली क्या करना है, पता करना है. सो यहाँ पे देखो, ये कौन सा व्यू है, दिस यू हैव रीड, जो आपने अगर जैनब मैम का क्लास किया होगा, इफ़ यू हैव डन जैनब बोराज क्लास, सी जनरली टीचर्स एट द लास्ट, वहाँ पे उनका नोट में भी एक होगा पीछे में, डिफरेंट व्यूज ऑफ एक्सरे. वहाँ पे आपको डिफरेंट व्यूज में वाटर्स व्यू, कार्डवेल व्यू और टाउनीज व्यू करके आप देखे होंगे वहाँ पे. सो दिस इज नथिंग बट अ कार्डवेल व्यू. देखो, दिस इज अ कार्डवेल व्यू. कार्डवेल व्यू में क्या होता है, हेल्प्स विजुअलाइज द फ्रंटल साइनस एंड एंटेरियर इथमोइडल साइनस. एंटेरियर इथमोइडल साइनस और फ्रंटल साइनस के व्यू के लिए जनरली दिस इज प्रीफर्ड. सो इसमें जनरली क्या करते हैं, इसको जनरली फिल्म पे जनरली ऐसे चिपकाते हैं. सो इसलिए यहाँ पे देखो, ये जो है सामने वाला पोर्शन वो ऐसे आगे आ रहा है. सो दिस इज जनरली नथिंग बट कार्डवेल व्यू. दिस इज कार्डवेल व्यू. एंड इसमें जनरली कौन भी देख सकते हैं हम, इथमोइडल साइनस, एंटेरियर इथमोइडल साइनस कैन आल्सो व्यू. ये देखो, ये मुंह खुला हुआ वाला अगर एक्सरे आपको मिला, मुंह खुला हुआ वाला और ऐसा ऊपर करके किया गया है. सो दिस इज नथिंग बट वाटर्स और मॉडिफाइड वाटर्स व्यू. नोटिस द ओपन माउथ एंड मैक्सिलरी साइनस अलोंग विथ फ्रंटल एंड एंटेरियर इथमोइडल साइनसेस आर विजिबल. दिस इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड वाटर्स व्यू. मॉडिफाइड वाटर व्यू, अगेन यू विल बी रीडिंग दिस इन द ENT अगेन. सो जस्ट रिमेंबर, ये मुंह खुला हुआ है. सो दिस इज जनरली वाटर्स व्यू. इतना याद कर लो तो बहुत ज़्यादा. टाउनीज व्यू की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो, टाउनीज व्यू में जनरली विजुअलाइज मास्टोइड एयर सेल. इट इज जनरली डन फॉर द मास्टोइड एयर सेल. और ये दिस इज जनरली टाउनीज व्यू. दिस इज टाउनीज व्यू. So you have known about Caldwell water
down is everything you have known. So now let's move ahead. What can be the diagnosis of the given image? यहाँ पे जो इमेज दिया हुआ है इसका जनरल डायग्नोसिस क्या होगा? So here you just see here, ये यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक रेडियो ओपेक शैडो इज बीइंग सीन. यहाँ पे देखो, रेडियो ओपेक शैडो इज बीइंग सीन हियर, और रेडियो ओपेक शैडो इज हियर. इट इज सजेस्टिंग ऑफ जनरली foreign body, that is radio opaque shadow is generally here due to the foreign body. So this is generally a case of foreign body. Ureterocele क्यों नहीं है? Because that is seen on IBP and this is not IBP. Bladder stone generally CT pelvis का कर देगा तभी हम जनरली उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट देखो, which of the following is the most radiosensitive bone tumor? Most radiosensitive bone tumor is generally nothing but Ewing's sarcoma. Most radiosensitive bone tumor is generally Ewing's sarcoma. Ewing's sarcoma generally appearances की अगर मैं बात करूँ तो 0 to 20 years is the common age group. Clinical feature mimics inflammation, redness, fever and swelling will be there. Onion skin periosteal reaction, हमने पहले भी बात किया इसका. Histopathological examination will see small round cell tumor, Homer-Wright pseudo-Rogett's, that is related with your pathology, and most radio and chemosensitive tumor, this is Ewing's sarcoma. Hodgkin's lymphoma में भी दिखा, बट यहाँ पे Hodgkin's lymphoma is not given here. ठीक है. आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर शोन इन गिवन रेडियोग्राफ. यहाँ पे गिवन रेडियोग्राफ में जो फ्रैक्चर देखो, ये दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना. फर्स्ट तो ये हमको देख लेना है. इसमें जनरली रेडियस कौन सा है, अल्ना कौन सा है. अगर रेडियस और अल्ना अगर हम देख लिए तो नाउ सी रेडियस में जनरली क्या हुआ है, डिस्टल पे क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है. डिस्टल इंड के पास में फ्रैक्चर हुआ है. पूरा डिस्टल इंड तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये उसके पास में फ्रैक्चर हुआ है. और अल्ना क्या हुआ, अल्ना तो यहाँ रहना चाहिए, अल्ना डिसलोकेट होके उस साइड चला गया. सो ये अगेन दिस यू मस्ट बी डूइंग इन योर और जस्ट हेयर ओनली, जस्ट को रिलेट दिस विथ योर ऑर्थोपेडिक्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें यहाँ पे देखो फ्रैक्चर ऑफ क्या हुआ है, डिस्टल पार्ट ऑफ द रेडियस प्लस डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट एंड अल्ना इंटैक्ट, एंड अल्ना इज जनरली इंटैक्ट. दिस इज डायग्नोसिस ऑफ गैलिएजी fracture. This is the diagnosis of Galeazzi fracture. So you must remember this. This is diagnosis of Galeazzi fracture. Galeazzi fracture में क्या होता है, fracture of distal part of the radius plus dislocation of distal radio ulnar joint. Distal radio ulnar joint plus डिस्टल जनरली क्या हो जाएगा, रेडियस में जनरली क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा. सो दिस इज जनरली गैलिएजी फ्रैक्चर. इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा मॉन्टेजिया फ्रैक्चर. ऑल ऑफ यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर ऑर्थोपेडिक्स. द नेक्स्ट इज मॉन्टेजिया फ्रैक्चर. मॉन्टेजिया फ्रैक्चर क्या है, जस्ट अपोजिट टू गैलिएजी फ्रैक्चर. और उसमें हमको क्या पढ़ना पड़ता है, प्रॉक्सिमल 1/3 अल्नार प्लस जनरली रेडियल हेड डिसलोकेशन. वहाँ पे रेडियल हेड डिसलोकेशन होगा, यहाँ पे अल्नार हेड डिसलोकेशन होगा. अल्नार हेड डिसलोकेशन दैट इज गैलिएजी फ्रैक्चर, और रेडियल हेड डिसलोकेशन दैट इज मॉन्टेजिया फ्रैक्चर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्ले सोवेलर फ्रैक्चर, इट इज जनरली लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रा स्पाइनस प्रोसेस का फ्रैक्चर है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द जेफरसन्स फ्रैक्चर, इट इज जनरली द फ्रैक्चर ऑफ C1 वर्टिब्रा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑर्थोपेडिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. आगे चलो, नेम्ड फ्रैक्चर्स वहाँ से पूछे जाते हैं. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विथ फीवर फॉर लास्ट 2 weeks with antalgic gait and low back pain. He has past medical history of taking incomplete treatment for tuberculosis. Diagnosis, history of tuberculosis भी है, और वो भी इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की हिस्ट्री है. ठीक है, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की हिस्ट्री है. सो नाउ सी यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, सो जनरली ये मसल्स की जनरली दी गई है. जनरली दिस इज एब्सेस इन द psoas मसल. ठीक है, एब्सेस इन द psoas मसल. और यही चीज़ें हमको यहाँ पे रेडियोलॉजिकल इमेज पे फाइंड करना है. सो यहाँ पे देखो ये पूछ रहे हैं हमसे. सो ये दिस इज नथिंग बट जनरली एब्सेस इन द psoas, दैट इज psoas एब्सेस. राइट साइडेड इलियोप psoas एब्सेस की जनरली क्या होती है, एक ट्रायड होती है. और ट्रायड में क्या क्या आता है, एंटाल्जिक गेट. देखो यहीं से क्वेश्चन, अगर ये ट्रायड आपको याद हुआ, यू डोंट नीड टू सी द एक्सरे ऑल्सो, यू विल डायरेक्टली गो टू द डायग्नोसिस. दैट इज नथिंग बट एंटाल्जिक गेट दिया हुआ है, लो बैक पेन दिया हुआ है, प्लस फीवर दिया हुआ है. सो दिस इज ट्रायड सीन इन 30% ऑफ द psoas abscess. ठीक है, सो दिस इज अ केस ऑफ psoas abscess. Which muscle attaches to the area pointed by the arrow? This arrow is pointing to the area here, and this is nothing but this is the lesser trochanter of the femur. You must remember this. This is the lower lesser trochanter of the generally femur. और femur के lesser trochanter में ये हमने जनरली कहाँ किया, anatomy में we have already done. और ये मसल देखो यहाँ पे आके क्या कर रहा है, जनरली अटैच कर रहा है. सो iliac psoas insertion on generally lesser trochanter. So lesser trochanter कौन सा है, iliac psoas muscle. So this is generally from the anatomy part. A 5-year-old boy is unable to pronate and supinate since childhood. Unable to pronate है, unable to supinate है since childhood. What is the diagnosis? Radio-ulnar synostosis, radial head dislocation, myositis ossificans and Montegia fracture. आप सबको अब तक क्या पता चल गया होगा कि this is nothing but radio-ulnar synostosis. यहाँ पे ये radial head dislocation क्यों नहीं होगा? Because it is seen in infants and children when child is pulled or lifted by the hand or wrist while his or her arm is generally held straight. Generally ऐसे पकड़ के बच्चों को उठाते हैं ना, कभी नहीं करना चाहिए.
चाहिए, दैट विल जनरली लीड टू रेडियल हेड डिसलोकेशन, और ये जनरली हिस्ट्री दी होगी क्वेश्चन में। मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन इट इज जनरली सीन इन पोस्ट ट्रॉमा, ठीक है, इट इज जनरली सीन पोस्ट ट्रॉमा एंड जनरली यहाँ पे चाइल्डहुड से ही दिया हुआ है, कोई ट्रॉमा वगैरह यहाँ पे नहीं दिया। नेक्स्ट इज Monteggia fracture, that is generally seen again in the post-trauma patient. So this is generally the diagnosis is going towards radioulnar synostosis. There is synostosis due to which the patient is not able to pronate or supinate. ठीक है। द गिवन स्कल एक्सरे फाइंडिंग इज सीन इन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेयर ऑन इंड अपीयरेंस, ये हेयर दिख रहा है ऊपर में इंड में, है ना, हेयर जैसा बना हुआ दिख रहा है। सो दिस इज जनरली हेयर ऑन इंड अपीयरेंस एंड दिस इज जनरली ड्यू टू हीमोलाइटिक एनीमिया, दिस इज जनरली ड्यू टू हीमोलाइटिक एनीमिया, या फिर जनरली थैलेसेमिया वगैरह में भी आपको मिलेगा। सो यहाँ पे थैलेसेमिया ऑप्शन में है ना, सो हीमोलाइटिक एनीमिया इज द बेस्ट ऑप्शन है। एनीमिया के केसेज में जनरली जब आरबीसी कम प्रोड्यूस होंगे तो जनरली जो दूसरे आरबीसी जनरली क्या होगा कि जो लॉन्ग बोन्स होता है उसके जनरली बोन मैरो में वहाँ पे प्रोड्यूस होगा टिप पे, है ना, बट जनरली ये अगर उससे अगर नहीं हो पा रहा है देन दिस स्कल बोन्स दे आल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, और जिसकी वजह से ये हेयर ऑन इंड अपीयरेंस दिखता है। सो दिस इज जनरली अ केस ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। नाइदर दिस इज मल्टीपल माइलोमा, क्योंकि वहाँ पे पंच्ड आउट लीजन्स होगा। ऑस्टियोपेट्रोसिस तो ये है ही नहीं, इंक्रीज आईसीटी की वजह से ऐसा कभी होता नहीं। सो दिस इज जनरली हीमोलाइटिक एनीमिया इज द बेस्ट आंसर हियर। आइडेंटिफाई द गिवन आईवीपी इमेज, द गिवन आईवीपी इमेज, आईवीपी। सो आईवीपी यहाँ पे देखो इंट्रावेनस पाइलोग्राम में जनरली क्या दिखेगा हमको, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, सो ये देखो, है ना, और यहाँ पे आके हेड बन रहा है, ये भी देखो यहाँ पे आके हेड बन रहा है। सो दिस इज नथिंग बट बाइलेटरल एडर और कोबरा हेड अपीयरेंस, कोबरा के जैसा हेड बन रहा है। सो दिस इज बाइलेटरल एडर और कोबरा हेड अपीयरेंस, सिस्टिक डायलेटेशन ऑफ डिस्टल एंड्स ऑफ द यूनिलेटरल और बाइलेटरल यूरेटर्स, एंड यहाँ पे बाइलेटरल यूरेटर्स में दिख रहा है। सो दिस इज जनरली अ यूरेटेरोसिल, यूरेट्रोसिल, कोबरा हेड और एडर हेड याद रखना है, दिस इज नथिंग बट यूरेट्रोसिल, यूरेट्रोसिल, नाइदर हाइड्रोनेफ्रोसिस नॉर ब्लैडर कैल्कुलाई नॉर इट इज जनरली स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई। सो चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो थिम्बल ब्लैडर इज सीन इन, थिम्बल ब्लैडर क्या है, थिम्बल ब्लैडर इज जनरली सीन इन टीबी एंड दैट टू जेनाइटो यूरिनरी टीबी। क्या है जेनाइटो यूरिनरी टीबी, देखो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ जेनाइटो यूरिनरी टीबी इज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, दैट इज पोलीयूरिया। मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन इज जनरली आईबीपी, ठीक है। नेक्स्ट देखो साइन यहाँ पे क्या दिखेगा, मोथ ईटन कैलिसेस, दैट इज इरेगुलरिटी ऑफ द कैलिसेस ड्यू टू द inflammation caused by the TB bacillus. The bladder will look like thimble bladder. What is thimble bladder? Low volume bladder because of the persistent inflammation. Because of the persistent inflammation, the bladder has now become low volume, and generally in the stage में generally putty kidney will be seen, that is lobar calcification of the kidney. All of you know about this. Autonephrectomy, non-functional kidney खुद ही क्या हो जाता है, ऑटोनेफ्रेक्टमी हो जाता है, खुद से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड दैट इज जनरली सिंपल भाषा में जिसको बोले तो नॉन functional kidney will be seen. So this is GUTB, genitourinary TB. Which of the following is gold standard investigation diagnosis of renal stone? renal stone के लिए gold standard diagnosis क्या होता है, helical CT with non contrast, helical CT with non contrast USG पे जनरली हम देख सकते हैं ना, but it is not the gold standard, ठीक है। investigation of choice for ureteric stones will be helical NCCT abdomen, and investigation of choice for polycystic kidney will be generally NCCT और MRI, ठीक है, non contrast CT और MRI। यहाँ पे देखो थंब रूल्स, अगर सीटी स्कैन में अगर हम बात करें तो कैल्सिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जनरली क्या होगा, फॉर कैल्सिफिकेशन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन, लाइक इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन, रीनल और यूरेट्रिक कैल्कुलाई एंड सेलिवरी स्टोन्स। इसके लिए जनरली क्या हो जाएगा, जनरली द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी जनरली NCCT. The bone cortex, it is this CT scan is again investigation of choice, and that too NCCT, non-contrast CT scan is investigation of choice in case of bone cortex, like fractures, all fractures except stress fracture. For stress fracture the investigation of choice will be MRI. MRI पे हम पकड़ सकते हैं stress fracture, we cannot see it on generally the our CT scan. Next is osteoid osteoma, other bones tumor. Generally osteoid osteoma generally के लिए क्या हो जाएगा, NCCT will be the investigation of choice. Other bone tumors के लिए MRI will be the investigation of choice. All other bone tumors will be picked on MRI except generally osteoid osteoma. Foreign bodies के लिए CT scan is the इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एक्सरे हो सकता है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस द विल बी NCCT एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विल बी MRI. अगर फॉरेन मेटालिक बॉडी है एंड देन यू आर डूइंग MRI, देन जस्ट think what will happen, है ना। So MRI is contraindicated in cases of the foreign bodies. Acute hemorrhage like NCCT, acute hemorrhage में generally NCCT is the non-contrast CT scan is the generally the investigation of choice, like in cases of acute head trauma, except diffuse
एक्सोनल इंजरी, उसमें MRI विल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन इन स्ट्रोक विल बी अगेन जनरली द CT स्कैन। एयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, एयर के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? CT स्कैन, नॉट एक्सरे बट CT स्कैन। CT स्कैन में एयर कहाँ कौन कौन से कंडीशन में होता है? अगर पेरिटोनियम में है तो दैट इज न्यूमोपेरिटोनियम, अगर थोरैक्स में है दैट इज न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोमेडियास्टाइनम, न्यूमोसिफेलस एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इन ऑल दीज केसेस द जनरली चॉइस विल बी, बेस्ट चॉइस विल बी CT स्कैन। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द बोन मार्क्ड विथ एरो, बोन मार्क्ड विथ एरो यहाँ पे, सो दिस बोन, ओके, सो दिस बोन दे आर शोइंग, ये क्यों नहीं चल रहा? जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, माई पेन इज नॉट वर्किंग है ना, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट नाउ अगेन। सो अगर इसकी मैं बात करूँ, सो दिस बोन इज नथिंग बट ह्यूमेरस, ये ऊपर से जो आ रहा है बोन, सो दिस इज नथिंग बट ह्यूमेरस, ह्यूमेरस बोन है ये। ह्यूमेरस के बाद क्या आएगा? रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना के बाद रिस्ट जॉइंट, और उसके बाद जनरली क्या आ जाएंगे? मेटाफैलेंजेज एंड फैलेंजेज, ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी देयर। चलिए आगे देखते हैं। ऑन IBP दिस इमेज वाज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द डायग्नोसिस? व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑन IBP इफ दिस इमेज वाज डायग्नोज? यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, है ना, ये दिख रहा है आपको। सो दिस इज नथिंग बट जनरली डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम, दिस इज जनरली, ये पहले ये देखो, द सोन IBP फाइंडिंग इमेज इज नोन एज ड्रूपिंग लिली, ये देखो उल्टा लटका हुआ ड्रूपिंग लिली, है ना, ये सही दिख रहा है ना ये। So this is generally drooping lily. This is drooping lily sign, and this drooping lily sign is generally seen in case of generally which is characteristic finding of the duplex ureter. Duplex ureter देखो कहाँ पे? Duplex collecting system, B number would be our answer. The drooping lily sign is a radiological sign in patients with generally a duplicated collecting system. It refers to the inferolateral displacement of the opacified lower pole. The size of the calyces in kidney is also very smaller in this case, and this is duplex collecting system. Diagnosis of duplex collecting system, and generally हॉर्स टू किडनी में क्या होगा? फ्लावर वेस और जनरली फ्लावर वास, और जनरली क्या तो सेकिंग हैंड अपीयरेंस विल बी सीन देयर, सेकिंग हैंड अपीयरेंस विल बी सीन देयर। MRI स्पाइन शोज फॉलोइंग फाइंडिंग, व्हाट इज द डायग्नोसिस? MRI ऑफ स्पाइन शोज द फॉलोइंग फाइंडिंग्स। यहाँ पे देखो ये डिस्क डिस्ट्रॉयड हो गया है ना, लुक एट दिस डिस्क, दिस डिस्क हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। ये जनरली अगर मैं देखूँ तो डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्टिब्रा भी हो रहा है। सो दिस इज जनरली किसके केस में जनरली होगा? सो दिस इज फिगर ऑफ और रेडियोलॉजिकल पिक्चर ऑफ जनरली द लंबोसैक्रल स्पाइन। LSS की पिक्चर है लंबोसैक्रल स्पाइन, जनरली यहाँ पे देखो ये नीचे आ रहा है, लंबोसैक्रल स्पाइन आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज नैरोइंग ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस, हियर वी कैन सी द डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस जो है दैट इज क्या हो रहा है कि नैरो हो जा रहा है। सो दिस इज नैरोइंग ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस। द वर्टिब्रल बॉडी देयर विल बी कोलैप्स और डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर पार्ट्स आर डिस्ट्रॉयड ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज, एंड वर्टिब्रल मैरो इडिमा इज ऑल्सो सीन देयर। वर्टिब्रल मैरो इडिमा जो कि हम उतने अच्छे से यहाँ पे नहीं देख सकते, बट जनरली देयर इज मैरो इडिमा। ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है दिस इज नथिंग बट CSF फ्लोइंग देयर, है ना, CSF वगैरह फ्लोइंग देयर। सो नाउ ये किस चीज़ की जनरली केस है? सो दिस केस इज गिवन ऑफ नथिंग बट TB स्पाइन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? IOC दैट इज MRI इज गिवन हियर, और दिस इज जनरली नैरोइंग ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस एंड एंटीरियर डिस्ट्रक्शन ऑफ जनरली द वर्टिब्रल बॉडीज। दिस इज द क्लियर कट अपीयरेंस ऑफ जनरली TB स्पाइन। ऑस्टियोपोरोसिस में जनरली क्या होगा? कॉडफिश माउथ अपीयरेंस ऑफ द वर्टिब्रा विल बी सीन, एंड जनरली दिस इज नॉट एट ऑल केस ऑफ मेटास्टेसिस। ऑस्टियोपेट्रोसिस में जनरली बोन विदिन बोन अपीयरेंस विल बी सीन, दैट इज सैंडविच वर्टिब्रा विल बी सीन देयर, ठीक है, हमको ये भी याद करना है। सो दिस इज TB स्पाइन। एक्सरे पेल्विस इमेज इज शोन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर मार्क्ड विथ एरो? यहाँ पे जो एरो से जो मार्क किया गया स्ट्रक्चर है वो क्या है? सो दिस एरो से मार्क किया गया स्ट्रक्चर, लेट मी गिव यू अ डिटेल्ड, यहाँ पे पूरा का पूरा मैं दिखाता हूँ इसको आपको। देखो दिस इज नथिंग बट सैक्रोइलियक जॉइंट, दिस इज द क्रेस्ट ऑफ द इलियम, दिस इज इलियम, एंड पोस्टेरियर इंफीरियर स्पाइन इज हेयर, एंड ग्रेटर सियाटिक नॉच विल बी हेयर, द एसिटाब्यूलम इज हेयर, एंड द फीमोरल हेड इज हेयर। दिस इज द फीमोरल हेड, एसिटाब्यूलम में फिट हो रहा है। दिस इज द फीमोरल नेक, है ना, ये लुक, दिस इज फीमोरल नेक। दिस इज जनरली इंटरट्रोकेंट्रिक जनरली क्रेस्ट, दिस इज द इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, है ना, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ये देखो ऐसे आ रहा है ना, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, एंड दिस इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर, व्हेयरएज दिस इज द लेसर ट्रोकेंटर, और इस पे कौन सा मसल होता है? इलियोप्सोआस मसल, जो पहले भी पूछ चुका है, एंड दिस इज द फीमर बोन। दिस इज जनरली इस्चियल ट्यूबरोसिटी, एंड दिस इज ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये यहाँ पे जो छोटा एक डिप्रेशन है, दिस इज नथिंग बट फोबिया, एंड दिस इज जनरली द सैक्रम, फोबिया एंड सैक्रम। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, सो दिस इज नथिंग बट, या भी आपने देखा, सो दिस इज जनरली ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, सो दिस इज ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। आगे देखो, रिंग साइन इज
is seen on urography. On urography, ring sign is seen. What is the diagnosis of the patient? Ring sign is generally cortical ring sign, or ring sign is generally scaphoid abnormal orientation. This is suggestive of the abnormal orientation of the scaphoid bone. So this is papillary necrosis. This is generally, oh, I'm very sorry. Look. Ring sign is seen on urography. What is the diagnosis of the patient? Ring sign on urography is generally papillary necrosis. Ring sign on urography is papillary necrosis, and cortical ring sign अगर बोला जाए, so this cortical ring sign is nothing but scaphoid abnormal orientation. ठीक है, abnormal orientation of जनरली स्केफोइड बोन विल रिजल्ट इन कॉर्टिकल रिंग साइन. अगर सीधा सीधा रिंग साइन पूछ रहा है, सो दैट इज पैपिलरी नेक्रोसिस. दैट इज पैपिलरी नेक्रोसिस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट predisposed for contrast nephropathy? For contrast nephropathy, which is the most predisposed condition? So यहाँ पे contrast nephropathy के लिए diabetes is the most predisposing risk factor, क्योंकि generally rise in generally serum creatinine above 25% within 40 to 72. contrast nephropathy में, this contrast nephropathy अगर आप generally contrast दे रहा हो, that will lead to generally rise in generally creatinine above 25% within 48 to 72 hours. That is called as contrast nephropathy. A nephropathic condition, there will be some pathology in the nephro, that is kidney, due to generally contrast. So that is called as generally कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी. और इसके लिए सबसे जनरली प्रीडिस्पोज कंडीशन क्या होता है? डायबिटीज इज द रिस्क फैक्टर. और ऐसे पेशेंट्स में जनरली हम ये देने से पहले उसका सीरम क्रिएटिनिन जो RFT होता है वो चेक करके ही देते हैं. अदरवाइज वी डोंट गिव जनरली द कॉन्ट्रास्ट देयर. स्पाइडर लेग साइन ऑन IVP. स्पाइडर लेग साइन ऑन IVP जनरली सजेस्ट पॉलीसिस्टिक किडनी. पॉलीसिस्टिक किडनी. लुक, स्पाइडर लेग साइन सजेस्ट पॉलीसिस्टिक किडनी. कोबरा हेड साइन सजेस्ट यूरेट्रोसिल और एडर हेड और कोबरा हेड जो हमने अभी ऊपर देखा था. फ्लावर वास साइन सजेस्ट हॉर्सू किडनी. सैंडी पैचेज विल बी जनरली सजेस्टिव ऑफ सिस्टोसोमियासिस ऑफ द ब्लैडर, एंड सोप बबल अपीयरेंस विल बी सीन इन केस ऑफ जनरली द हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑल्सो. सोप बबल जनरली कहाँ पर भी दिख रहा था हमको? एक ऊपर हमने किया था. सो नेक्स्ट मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज प्रीफर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ वेसिकोयूरेट्रिक रिफ्लेक्स. वेसिकोयूरेट्रिक रिफ्लेक्स के लिए इन्वेस्टिगेशन कौन सा? फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज प्रीफर्ड, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा? सो दैट इज नथिंग बट मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम. क्रू कट अपीयरेंस ऑन एक्सरे स्कल इज सीन इन, दिस इज नथिंग बट थैलेसेमिया, दैट इज हेयर ऑन एंड अपीयरेंस जो हमने अभी ऊपर देखा था. नेक्स्ट देखो, बोन विद इन अ बोन, वहाँ पे हेमोलाइटिक एनीमिया हमने वहाँ पे लगाया था क्योंकि थैलेसेमिया वहाँ पे नहीं दिया गया था ऑप्शन. ठीक है. बोन विद इन अ बोन अपीयरेंस अभी ऊपर हमने पढ़ा था. बोन विद इन अ बोन दैट इज ऑस्टियोपेट्रोसिस. हेयर ऑन इंड अपीयरेंस दैट इज सिकल सेल एनीमिया. एनीमिया रिलेटेड कुछ है यहाँ पे, उसको लगा दो. दिस इज जनरली सिकल सेल एनीमिया. एंड जनरली हेयर ऑन इंड अपीयरेंस दैट इज जनरली ड्यू टू द क्रोनिक हीमोलाइसिस. हेयर ऑन इंड जो जनरली है, इट इज सीन इन मेनी केसेस लाइक हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, न्यूरोब्लास्टोमा, एंजाइम डेफिशिएंसी एग्जांपल G6PD डेफिशिएंसी कॉजिंग हीमोलाइटिक एनीमिया एंड सिकल सेल डिजीज एंड थैलेसेमिया मेजर. इन सब में जनरली ये दिखता है. मार्टल साइन इज सीन इन जनरली मार्टल साइन और रैट बाइट साइन. दिस इज सीन इन गाउट. गाउट इज जनरली ड्यू टू इंक्रीज इन जनरल यूरिक एसिड. क्या यूज करते हैं हम जनरली? वी कैन यूज, क्या यूज करते हैं? एलोप्यूरिनॉल विल बी यूजिंग फॉर द ट्रीटमेंट. याद है ना आपको बायोकेमिस्ट्री में. सो नेक्स्ट देखो, न्यूकल थिकनेस इज एलिवेटेड इन. न्यूकल थिकनेस इज इवेल्युएटेड इन. न्यूकल थिकनेस मतलब नेक के नीचे जो थिकनेस होता है, जो जनरली हम USG पे मेजर करते हैं. ऑप्स गाइने में अगेन विल बी डूइंग दैट. सो न्यूकल थिकनेस इज इवेल्युएटेड इन द एंटीनेटल USG सेकेंड ट्राइमेस्टर. ठीक है, एंटीनेटल USG सेकेंड ट्राइमेस्टर. न्यूकल ट्रांसलूसेंसी मेजर्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एट जनरली 11 to 14 वीक्स. ठीक है. एंटीनेटल USG सेकेंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एट 11 to 14 वीक्स. बेस्ट ये आपको 11 to 14 वीक्स में दिखेगा. सो जनरली एंटीनेटल USG सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंटीनेटल USG फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एंटीनेटल USG थर्ड. सो बेस्ट ऑप्शन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर दिया हुआ है तो विल गो विथ दैट इज नथिंग बट 4 या 12 सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होगा. सो 11 to 14 वीक्स दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर विल बी द बेस्ट आंसर. ठीक है. आगे चल देखते हैं. एब्डोमेन की इमेजिंग की बात करते हैं. सो नाउ स्टार्ट विद द एब्डोमेन इमेजिंग. आइडेंटिफाई द कंडीशन जनरली इन द गिवन इन दिस एक्सरे ऑफ द नियोनेट. ये जो एक्सरे दिया हुआ है इसमें क्या दिखा रहा है? सो इसमें देखो 1, 2 और ये 3 बड़े बड़े जनरली हमको क्या दिख रहे हैं? बबल साइन दिख रहे हैं. बबल साइन दिख रहे हैं और भी 3 बड़े बड़े. सो देखो बबल साइन से हमको क्या याद रखना है? बबल साइन में स्टोमक के अगर अंदर एयर है, इफ द एयर इज इनसाइड द स्टोमक और स्टोमक विथ एयर, देयर विल बी सिंगल बबल साइन. इफ देयर इज डुओडेनल एट्रेसिया, वी विल हैव डबल बबल साइन. डी से डुओडेनल, डी से डबल बबल.
Jejunal atresia, there will be triple bubble. Jejunal atresia, there will be triple bubble. Ilium atresia में there will be multiple bubbles will be seen. So this यहाँ पे 3 bubbles हमको दिख रहे हैं. So this 3 bubbles is generally jejunal atresia. Jejunal atresia ये देखो single bubble generally in the stomach है ना, stomach is filled with air and double bubble is seen here. एक और 2 bubble यहाँ पे दिख रहे हैं. So यहाँ पे this is nothing but generally duodenal atresia. This is double bubble sign seen in duodenal atresia. और यहाँ पे देखो triple bubble 1 2 और 3 जो कि यहाँ पे भी हमको दिया गया है 3. सो दिस इज जनरली ट्रिपल बबल अपीयरेंस एंड ट्रिपल बबल अपीयरेंस इज सीन इन जेजुनल एट्रेसिया. और इज दिस मल्टीपल बबल, बहुत सारे बबल्स दिख रहे हैं. सो दिस बहुत सारे बबल्स दिख रहे हैं. सो दिस इज जनरली केस ऑफ जनरली इलियम एट्रेसिया, एट्रेसिया ऑफ द इलियम. जनरली दिस विल अगेन बी डूइंग इन द पेडियाट्रिक्स अगेन. ठीक है. सो दिस इज जेजुनल एट्रेसिया. आगे देखो 30-year-old फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विथ चिल्स एंड राइगर्स. सी हैज सीवियर पेन इन राइट फ्लैंक रीजन विथ टेंडरनेस नोटेड एट कोस्टोवर्टिब्रल एंगल. एक्सरे एब्डोमेन वाज डन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. व्हाट इज द डायग्नोसिस? यहाँ पे देखो व्हाट इज द डायग्नोसिस. ये देखो किडनी जो है ना यहाँ पे उसमें जनरली क्या दिख रहा है, एयर दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है पूरा. सो दिस इज एयर इन किडनी. सो एयर इन किडनी इज जनरली सजेस्टिव ऑफ इम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस. इम्फाइसेमेटस दैट इज नथिंग बट पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी में, और इम्फाइसेमेटस यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर. पैपिलरी नेक्रोसिस में क्या हो जाएगा, क्लबिंग ऑफ कैलिक्स विल बी सीन. रीनल ट्यूबरकुलोसिस में पुट्टी किडनी इन द इंड स्टेज विल बी सीन एंड जनरली दिस इज नॉट अ केस ऑफ acute tubular necrosis. So this is emphysematous pyelonephritis. Comment on the diagnosis from the following radiograph. ये following radiograph को देख के आप जनरली क्या करो, 1 और 2 बबल साइन. सो दिस इज duodenal atresia. दैट इज क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसमें जनरली, polyhydramnios in an antenatal USG. antenatal USG पे polyhydramnios and villus vomiting in first 2 days of the life. Villus vomiting is there, that is generally suggestive of generally the duodenal atresia. A 50-year-old female came to OPD with complaints of dysphagia and recurrent episodes of the chest pain. The patient was further evaluated with barium swallow, which is shown below. What is the most probable diagnosis here? The patient further evaluated with barium swallow, which is shown below. What is the most probable diagnosis here? So the problem यहाँ पे देखो, ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है आपको, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस दिख रहा है, कैसा दिख रहा है. सो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस इन द इसोफेगस इज बीइंग सीन. सो दिस इज नथिंग बट कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस एंड दिस कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस ऐसा होता है ना, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस है ना, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस. दिस ये तो मैंने वो बना दिया, क्या बोलते हैं इसको, डीएनए बना दिया, बट जनरली कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस है ना. सो दिस इज जनरली कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाजम. दिस इज ड्यू टू डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाजम विल बी आवर आंसर. कार्सिनोमा इसोफेगस में क्या होगा जनरली, सोल्डरिंग अपीयरेंस विल बी सीन, सोल्डरिंग अपीयरेंस एंड देयर विल बी द हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया and that too dysphagia of solid greater than liquid. solid खाने पे जनरल ज़्यादा dysphagia होगा और liquid पे कम होगा. next is achalasia cardia. achalasia cardia में there will be bird beak sign. the bird beak sign will be there. dysphagia will be generally greater for liquid than solids. most important, ये generally आपसे पूछे जाएंगे सर्जरी में. this is the very important buzzwords that they will be asking you. आगे चलो, esophageal web. esophageal web की अगर मैं बात करूँ, so esophageal web में there will be mucosal membrane which arises from the anterior wall of the esophagus and location will be generally cervical esophagus will be the location for this esophageal web. Identify the pattern seen in Baryon enema shown here. Baryon enema में जनरली ये पैटर्न जो दिख रहा है, दिस पैटर्न है ना, दिस पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है, दिस इज नथिंग बट, अगर आपने आरी दिखा है, घर में आरी देखा होगा ना आपने, हाँ आरी ऐसा होता है ना, है ना, आरी होता है ना ऐसा आरा, जिससे काटते हैं हम जनरली वुड्स कटिंग के लिए. सो दिस इज नथिंग बट सॉ टूथ साइन. सॉ टूथ साइन ईजी पे सॉ टूथ साइन कहाँ दिखता है, दैट इज REM स्लिप में दिखता है. जस्ट कोरिलेट इट विथ योर फिजियोलॉजी हेयर अगेन. सॉ टूथ साइन कहाँ कहाँ पढ़ना होता है हमको, ये एक्सरे हम अभी दिख रहे हैं. This is generally outpouching from sigmoid colon. So this is sawtooth sign found in the sigmoid colon and this is investigation of choice. इसके लिए क्या होगा, colonoscopy will be the investigation of choice followed by barium enema. यहाँ पे हमको barium enema दिया हुआ है. So generally this sawtooth sign, this is sawtooth sign यहाँ पे दिख रहा है हमको, है ना. And next sawtooth sign हमको कहाँ पे दिखेगा, जनरली sawtooth sign next is seen in EEG की बात करें फिजियोलॉजी में. सो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम पे द सॉटूथ साइन इज जनरली सजेस्टिव ऑफ REM स्लिप. REM स्लिप में सॉटूथ साइन दिखेगा. एंड ECG पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर कार्डियोलॉजी, दैट इज ECG पे जनरली दिस सजेस्ट्स, दिस सॉटूथ साइन सजेस्ट जनरली एट्रियल फ्लटर. दिस सजेस्ट्स एट्रियल फ्लटर, वेरी इंपॉर्टेंट, एट्रियल फ्लटर वाला हमको याद रखना है. सो दिस इज सॉटूथ साइन, दिस इज सॉटूथ साइन. यहाँ पे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं हुआ, डायग्नोसिस पूछा ही नहीं, बस ये पूछा है कि ये साइन क्या है, देख के बता सकते हो सॉटूथ साइन.
एप्पल कोर साइन ऐसा नहीं होता। एप्पल बीच से अगर खा के उसको ऐसे रखे तो कैसा दिखेगा, बीच में से खाली सा, दैट इज एप्पल कोर साइन। कॉर्क स्क्रू ऊपर ही हमने देखा था। और 35 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स विद डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन एंड वेट लॉस, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन, वेट लॉस, व्हाट इज द डायग्नोसिस? यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे आके बीक बन रहा है बर्ड का। सो दिस इज जनरली बर्ड बीक साइन। बर्ड बीक साइन इज सीन इन, अभी ऊपर हमने पढ़ा था अकेलेजिया कार्डिया, अकेलेजिया कार्डिया। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी इन द गिवन अल्ट्रासाउंड इमेज। इस गिवन अल्ट्रासाउंड इमेज पे ये देखो आप जनरली, है ना, ये देखो, ये देखो, और इसके नीचे ये शैडोइंग भी देखो, इसके नीचे शैडोइंग भी देखो। सो दिस इज जनरली स्टोन्स इन द गॉल स्टोन, दीज आर जनरली स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर, दिस इज कॉल्ड एज गॉल स्टोन। और बहुत सारे स्टोन है, सो दिस इज मल्टीपल गॉल स्टोन्स। हाइड्रेटेड सिस्ट में जनरली लीवर पैरेन्काइमा में दिखेगा कुछ, एंड कोलिडोलिथियासिस में जनरली कोलिडोकोलिथियासिस, ठीक है, कोलिडोकोलिथियासिस देयर विल बी मे बी मिस्ड ऑन यूएसजी if it is seen in the CBD. if गॉल ब्लैडर कैंसर की बात करूँ तो देयर विल बी फंगेटिंग मास सीन बेटर विथ MRCP, ठीक है। A 30-year-old patient comes to the emergency room with multiple episodes of vomiting and severe abdominal pain. On investigation, the following image is obtained. What is the likely diagnosis? ये इमेज यहाँ पे obtained हो रहा है। सो जनरली यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं, जनरली severe abdominal pain, multiple episodes of vomiting, and the next is generally ये इमेज दिख रहा है। सो दिस इमेज, ये वाला इमेज अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, सो जस्ट सी, दिस इज नथिंग बट अ हॉर्स शू शेप किडनी, दिस इज अ हॉर्स शू शेप किडनी। सो मोस्ट कॉमन congenital fusion anomaly of the kidney, and kidneys are inferior in position, higher incidence of trauma, higher chances of stasis and calculation, and increased incidence of transitional cell carcinoma. So this is horseshoe किडनी। दोनों किडनी फ्यूज हो जाते हैं और हॉर्स शू की तरह बन जाते हैं। डायग्नोज बेस्ड ऑन द गिवन इमेज। यहाँ पे देखो, ये सब क्या है, फॉलिकल्स हैं, अरेंज हुए हैं। ये कैसे पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जनरली शेप में अरेंज हो रहे हैं। सो दिस इज जनरली PCOD, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन गाइने में, दिस PCOD, नेकलेस अपीयरेंस और स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल अपीयरेंस। सो दिस इज जनरली PCOD। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में जनरली ये जनरली क्या हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ IVF जनरली दिया जा सकता है जनरली इन केस ऑफ ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ठीक है। अगर हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के लिए पूछ रहा है तो वहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हिस्ट्री ऑफ IVF। सिस्ट्स आर लार्जर एंड प्रेजेंट जस्ट जक्स्टापोजिंग ईच अदर, द सिस्ट्स बड़े बड़े होंगे, यहाँ पे सिस्ट छोटे छोटे हैं। सो दिस इज PCOD। A 2-week-old child is brought to the emergency room by her mother with symptoms of non-villous vomiting and lump in the epigastric area. Lump in the epigastric area and non-villous vomiting. What is the most appropriate diagnosis? So most appropriate diagnosis for ये, और ये देखो, ये एक्सरे का भी जनरली क्या कर दिया गया है, जनरली फोटो दे दिया गया। सो दिस इज नथिंग बट कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये देखो, स्टोमक के बाद जो पाइलोरस आता है वहाँ पे पूरा का पूरा स्टीनोज्ड हो गया। द पाइलोरस इज कंप्लीटली स्टीनोज्ड। लुक, दिस पाइलोरिक स्टेनोसिस इज आइडियोपैथिक हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस एंड कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा अल्ट्रासाउंड टू सी द मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी देयर एंड टू मेजर द थिकनेस ऑफ द मस्क्यूलर लेयर ऑफ द पाइलोरस। USG इज जनरली द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। और मसल दैट इज ग्रेटर देन 4 mm थिक एंड लेंथ ऑफ पाइलोरस विल बी ग्रेटर देन 16 mm लॉन्ग, ठीक है। ये डो नॉट अपीयरेंस भी दिखेगा। मसल थिकनेस यहाँ से हम नाप कर सकते हैं। एंड जनरली दिस इज सजेस्टिव, यहाँ पर भी देखो, दिस इज जनरली सजेस्टिंग ऑफ जनरली द व्हाट, दिस इज नथिंग बट कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्लिनिकल फीचर भी देख लो आप थोड़ा सा। क्लिनिकल फीचर इज नॉन विलस वोमिटिंग जो दिया हुआ वहाँ पे, अराउंड 4 to 5 weeks ऑफ द लाइफ एंड यूजुअली इन फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड। और ऑलिव लाइक लंप इन द एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम में ऑलिव लाइक लंप दिखेगा। वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। एसिड बेस डिसऑर्डर लाइक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस विल बी सीन। हाइपरक्लोरेमिक हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया विल बी देयर। मैनेजमेंट, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड रैमस्टेड प्रोसीजर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जनरली सर्जरी, रैमस्टेड प्रोसीजर। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। बेरियम मिल में देयर विल बी स्ट्रिंग साइन, नैरो पाइलोरस गोइंग इनटू द डिओडेनम, मशरूम साइन, एंड नेक्स्ट इज जनरली कैटरपिलर साइन ड्यू टू द परसिस्टेंट पेरिस्टाल्टिक वेव्स, डबल और ट्रिपल ट्रैक साइन, टीट साइन, बिग साइन, शोल्डर साइन और डायमंड साइन। ये सब बेरियम मिल पे जनरली दिख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे करते हैं। एक्सरे ऑफ 2-year-old चाइल्ड इज गिवन, व्हाट इज द पॉसिबल डायग्नोसिस। यहाँ पे देखो 2-year-old चाइल्ड की एक्सरे दी गई है, इसमें व्हाट इज द डायग्नोसिस। यहाँ पे देखो एयर इन द होल एब्डोमेन, ये पूरे एब्डोमेन में काला काला दिख रहा है। सो दिस इज जनरली एयर इन द होल एब्डोमेन, दैट इज न्यूमोपेरिटोनियम, और जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरा कैसा दिख रहा है, फुटबॉल के जैसा दिख रहा है। सो दिस इज फुटबॉल साइन इज सीन इन द केस ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम। आइडेंटिफाई द गिवन बैरियम इनिमा इमेज, बैरियम इनिमा इमेज पे ये देखो क्लॉ जैसा साइन दिख रहा है,
है ना, दिस इज अ क्लॉ साइन, बेरियम मिल पे क्लॉ साइन इज जनरली सजेस्टिव ऑफ इंटरसेप्शन, ठीक है। रेड करेंट स्टूल, रेड करेंट जेली स्टूल जनरली जो हमको कहाँ पूछते हैं जनरली, दे विल बी आस्किंग दिस इन द surgery. So this is intersusception. Age is most common generally in the 6 to 8 months, and clinical feature will be painful red current jelly stool. This is the many times they have asked this question in the surgery. Initial investigation is USG, and investigation of choice will be the barium enema. आगे देखो, identify the structure being pointed by the arrow. ये एरो जो पॉइंट कर रहा है ये देखो, what are these? These are nothing but portal veins. These are portal veins. यहाँ देखो. So how would hepatic artery entering into the liver look like? Look, notice the celiac trunk, है ना, celiac trunk देखो, and two bifurcations of the right and left hepatic artery. There will be two bifurcation of the right and left artery. In the image given in the question, 3 branches can be seen. यहाँ पे देखो कितने ब्रांचेस दिख रहे हैं, 1 2 3. सो 3 ब्रांचेज अगर दिख रहे हैं, सो दिस इज पोर्टल वेन, है ना। और अगर 2 ब्रांचेस देखते हैं तो दैट विल बी जनरली हेपाटिक आर्टरी। बस इतना याद रखो, 2 ब्रांचेस, ठीक है, 2 ब्रांचेस फ्रॉम अ फोकल पॉइंट। पेशेंट विथ राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन हैज अ वाटर लिली साइन इन अल्ट्रासाउंड। एक वाटर लिली साइन और एक ड्रूपिंग लिली साइन। तो ड्रूपिंग लिली हमने देख लिया। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट वाटर लिली साइन इन अल्ट्रासाउंड, व्हाट इज द डायग्नोसिस? दैट इज नथिंग बट हाइड्रेटेड सिस्ट। हाइड्रेटेड सिस्ट cause will be echinococcus granulosus. Humans are the accidental host. All the following areas are scanned in FAST. FAST क्या है? फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। फास्ट जनरली किसके लिए यूज करते हैं? हम ट्रॉमा के लिए यूज करते हैं। एंड ऑल द फॉलोइंग आर स्कैन्ड इन द फास्ट। सबसे पहले देखते हैं फास्ट में क्या क्या है। जनरली 4 रीजन्स दैट आर मेनली असेस्ड बाय द फास्ट स्कैन आर pericardial or subxiphoid view to rule out pericardial effusion, right upper quadrant view that is perihepatic view or Morrison pouch view to rule out the fluid in the hepatorenal interface, Morrison pouch due to hepatorenal trauma, left upper quadrant or perisplenic view to rule out the fluid in perisplenic space due to spleen trauma, and the next is pelvic or suprapubic view. This space pouch of Douglas is most dependent peritoneal space. It rules out the generally bladder or other pelvic organ damage. So generally this fast is mainly made for the fast assessment of generally the sonography for trauma. So trauma patients में जनरली इसको हम अप्लाई करते हैं ताकि वहाँ पे ये 3-4 व्यू लेते हैं ताकि हमको वहाँ से एक्सक्लूड आउट कर सके कि इस जगह पे जो मेन जगह होते हैं जनरली ट्रॉमा में जहाँ पे इंजरी हो सकता है एंड दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, उससे हम जनरली बच सकते हैं. सो जनरली एक्सटेंशन ऑफ फास्ट इज ई फास्ट विच इंक्लूड्स स्कैनिंग ऑफ प्लूरल स्पेस ऑल्सो टू रूल आउट एनी इंजरी टू लंग्स और प्लूरल इफ्यूजन. लंग्स और प्लूरल इफ्यूजन. सो जनरली दिस इज फास्ट एंड जनरली यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल कैविटी इज नॉट हेयर. ऑल द फॉलोइंग एरियाज आर scanned except pleural cavity. Investigation of choice for acute cholecystitis. Acute cholecystitis generally most specific इसके लिए क्या हो जाएगा, HIDA स्कैन हो जाएगा. बट जनरली अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो दैट विल बी जनरली इन केस ऑफ एनी गॉल ब्लैडर केसेस, सारी चीज़ों में जनरली इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज यूएसजी. जैसे कि एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, कोलेलिथियासिस, रिनल स्टोन, इंट्रायूट्राइन पैथोलॉजी, असेसमेंट ऑफ फीटस टू सी मिनिमल प्लूरल फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड, हाइड्रोसिफेलिस इन इन्फेंट्स, कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये सब के लिए यूएसजी हम यूज कर सकते हैं. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गर्ड. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गर्ड इज नथिंग बट 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. यूएसजी से कुछ नहीं होगा वहाँ पे. हीडा जनरली बिलियरी अट्रेसिया, नियोनेटल हेपेटाइटिस, एबनॉर्मल बिलियरी लीकेज और एक्यूट और क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस के लिए यूज करते हैं हीडा. बट इफ आई टॉक अबाउट मैनोमेट्री दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मोटिलिटी डिसऑर्डर्स. मोटिलिटी डिसऑर्डर्स कौन कौन से थे? एक्लेजिया, कार्डिया एंड डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाजम इनके लिए. 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग इज जनरली डन फॉर द गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. कमेंट ऑन द डायग्नोसिस ऑफ द इमेज सोन बिलो. यहाँ पे देखो कमेंट, यहाँ पे देखो दिस इज नथिंग बट ये देखो ऊपर से ऐसा दिख रहा है ना एंड नीचे से ऐसा दिख रहा, और ये बीच में जो एप्पल का हम खा के छोड़ देते हैं वैसा दिख रहा. सो दिस इज एप्पल कोर अपीयरेंस एंड दिस इज सजेस्टिव ऑफ कार्सिनोमा कॉलन. कॉलन में एप्पल कोर अपीयरेंस, दिस इज सजेस्टिव ऑफ कार्सिनोमा कॉलन. कॉफी बीन अपीयरेंस इज सीन इन सिग्मोइड वॉल्व्यूलस. क्लॉ साइन इज सीन इन केस ऑफ इंटरसेप्शन, जस्ट ऊपर देखा हमने. स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर इज सीन इन जनरली क्रॉन्स डिजीज. क्रॉन्स डिजीज ये देखो. नेम द स्ट्रक्चर मार्क्ड विथ एरो. यहाँ पे जो एरो से मार्क किया गया स्ट्रक्चर, अगेन दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन एनाटॉमी. इफ यू हैव नॉट सीन देयर जस्ट गो एंड सी देयर, बट अगेन आई विल शो यू हियर आल्सो. ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, गैस काला दिख रहा है, दिस इज गैस. ये स्टोमक कंटेंट्स दिख रहे हैं, दिस इज पैनक्रियाज, दिस जनरली एब्डोमिनल एओर्टा, दिस इज वेना कैवा, दिस इज लीवर, है ना, एंड दिस इज स्प्लीन. ठीक है, दिस इज स्प्लीन. सो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ये कौन सा है, दिस ऑर्गन इज व्हिच ऑर्गन, सो दिस इज नथिंग बट स्प्लीन. फंडस पार्ट पे जनरली स्टोमक के ऊपर. आगे देखो, अ 7-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड विथ एब्डोमिनल पेन एंड जॉन्डिस. सिटी एब्डोमेन इज गिवन बिलो. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. यहाँ पे देखो सिटी एब्डोमेन दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस पूछ रहा है. सो यहाँ पे दिस
दिस यहाँ पे जो छोटा सा एक हमको सिस्ट की तरह दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट हाइडाटेड सिस्ट, दिस इज द हाइडाटेड सिस्ट। आइडेंटिफाई द ऑर्गन शोन विथ एन एरो, ये देखो ये इस ऑर्गन में जनरली, दिस इज नथिंग बट जनरली ऐसे अगर मैं आपको बताऊं, सो दिस इज जनरली स्टोमक, दिस इज स्टोमक, और यहाँ पे ये रूगा फोल्ड्स भी दिख रहे हैं हमको, सो दिस इज जनरली स्टोमक। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा, आप देख लो यहाँ पे सारे ऑर्गन्स इसमें जनरली दिए गए हैं, ठीक है। सो दिस इज यहाँ पे देखो स्टोमक ऐसे व्यू पे यहाँ दिखता है, ये स्टोमक है, ये स्प्लीन है ना, दिस इज स्प्लीन, दिस इज लीवर है ना, दिस इज लीवर। ये यहाँ पे अगर मैं बताऊँ सो दिस इज डुओडेनम है ना, दिस इज डुओडेनम। ये पैनक्रियाज दिख रहा है हमको है ना, दिस इज पैनक्रियाज। किडनीज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है ना, ये किडनीज दिख रहे हैं हमको जनरली, ठीक है। सो दिस आर जनरली द किडनीज, और सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिख रही हैं। आगे देखो, मोस्ट यूजफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर लीवर एब्सेस, लीवर एब्सेस के लिए मोस्ट यूजफुल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली अल्ट्रासाउंड। नॉर्मल थिकनेस ऑफ गॉल ब्लैडर वॉल, गॉल ब्लैडर वॉल की नॉर्मल थिकनेस इज 3 mm, दैट यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग फ्रॉम योर सर्जरी ऑल्सो, दैट इज 3 mm। 5 mm जनरली, ग्रेटर देन 5 mm इज थिक गॉल ब्लैडर, थिक गॉल ब्लैडर। थंब प्रिंट साइन ऑन बेरियम इज सीन इन, थंब प्रिंट साइन, ये देखो ये थंब प्रिंट साइन, दिस इज जनरली ड्यू टू द इडीमा एंड दिस इज सीन इन इस्चेमिक कोलाइटिस, ठीक है, इस्चेमिक कोलाइटिस। ईएनटी में भी थंब साइन आपको बोला जाएगा, याद करना। डायग्नोसिस ऑफ द गिवन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन, ये इवन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन में जनरली देखो ये कॉफी बीन अपीयरेंस दिख रहा है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कॉफी बीन साइन, दिस इज द केस ऑफ सिग्मोइड वॉल्वुलस। सिग्मोइड वॉल्वुलस क्या होता है जनरली इन पेशेंट्स विद द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, दिस इज सीन, एंड कॉफी बीन और ओमेगा साइन इज देयर, एंड बेरियम इनिमा शोज द बर्ड ऑफ प्रे साइन, बर्ड ऑफ प्रे साइन। So this is sigmoid volvulus. Double barrel sign is seen in, double barrel sign is seen in generally, double barrel गन में होता है ना, एक ये बैरल और एक ये बैरल, दो बैरल होता है ना गन में। सो दिस इज डबल बैरल गन लाइक साइन है ना, डबल बैरल, एक दो बैरल होता है यहाँ पे है ना, दो बैरल, डबल बैरल साइन इज सीन जनरली इन obstructive jaundice, double barrel gun like sign due to extra tube running alongside intrahepatic portal veins, this is generally seen in the obstructive jaundice, and duodenal atresia में there will be double bubble, not double barrel है, don't be confused। Cobalt stoning of intestine with a string of sign of Cantor, string of sign of Cantor अभी मैंने बताया था, that is Crohn's disease। पाइप स्टीम कॉलन एंड बेरियन एनीमा इज सीन विद, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। दो याद रखो, क्रॉन्स डिजीज में कॉबल स्टोनिंग ऑफ इंटेस्टाइन विथ स्ट्रिंग ऑफ कैंटर, ये याद रखो, स्ट्रिंग ऑफ कैंटर जनरली क्रॉन्स डिजीज है ना। और अगर आपको पूछे पाइप स्टीम कॉलन, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। टारगेट साइन इज सीन इन इंटरसक्सेप्शन, टारगेट साइन इज अगेन सीन इन इंटरसक्सेप्शन। इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर न्यूनेटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इज नथिंग बट अल्ट्रा साउंड। सॉटूथ अपीयरेंस इज सीन इन डायवर्टिक्यूलोसिस, जो ऊपर हमने देखा था, सो दैट वाज sawtooth appearance sign, sawtooth appearance sign। apple core appearance on Berrian enema is seen in carcinoma colon, जस्ट ऊपर देखा हमने इमेज भी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, पैनक्रेटाइटिस के लिए जनरली कॉन्ट्रास्ट सीट्यूड भी जनरली द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सेंटिनेल लूप ऑन एक्सरे, सेंटिनेल लूप ऑन एक्सरे विल बी सीन इन केस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। RTA, road traffic accident brought in casualty on examination, liver rupture is suspected, which of the following investigation is to be done first, that is nothing but जनरली USG, ठीक है, USG ई फास्ट करके हमने ऊपर पढ़ा था ना अल्ट्रासोनोग्राफी में जनरली, सो दैट इज ई फास्ट USG। आइडेंटिफाई द इमेज, आइडेंटिफाई द इमेज हेयर, जनरली अगर इस इमेज में यहाँ पे अच्छा, दे आर आस्किंग वेदर दिस इज अ डिजिटल एक्सरे, पेट स्कैन, CT और USG, सो दिस इज जनरली सेट स्कैन, CT स्कैन। और इस पर जनरली क्या कर देंगे, इसको कलरफुल दिखाएंगे तो हमको कैसा दिखेगा, दैट विल बी जनरली इम्पोज्ड ऑन ईच अदर, दैट विल बी गिविंग अस अ जनरली पिक्चर ऑफ द पेट स्कैन, वहाँ पे आपको दिखेगा। सो दिस इज जनरली आज अभी यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे वाला सारा करवा दूंगा। नाउ प्रोबेबली 3-4 पेज और होंगे, 1 2 3 4 5 पेज और है, ठीक है, थोड़े बहुत पेज और बाकी है। और जनरली इमेज वगैरह है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरली एग्जाम, और एग्जाम में से पूछ भी देते हैं। सो आई विल डू द रिमेनिंग थिंग्स इन द नेक्स्ट lecture. This much for this lecture. Keep sharing with your friends and keep revising because your exam is very much near. Thank you so much.